So, hello students, welcome to the video lecture of subject concrete technology. So, we are studying about unit 4, that is concrete mix design and testing of concrete. So, here in this topic we will study about what is non-destructive testing of concrete, its importance and limitations. So, vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission: imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: prepare concrete of required specification. Then unit outcome: describe the need of NDT for the given field situation. Then interpret the given data obtained from NDT on given structure. Then program outcome map here are basic and discipline knowledge, problem analysis, engineering tools, experimentation and testing. Then engineering practices for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. Then non-destructive testing. So what is the meaning of NDT or non-destructive testing? So non-destructive tests on concrete are said so because these tests can be performed inside as well as in laboratory without destructing the concrete members, and result about strength and durability of existing or old structures can be obtained. So without destructing or without damaging the structure, you can find out the strength and durability of the old as well as existing structures. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज, इसलिए उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पता चलती है हमको वो विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर मिल जाती है. देन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या है? इट इज़ द पावरफुल मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स. Then assessment and control of quality of hardened concrete without any significant damage to the structure. Then investigation of micro crack, crack depth and progressive deterioration is also studied. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से ये सारी चीज़ें पता चल. सिंपल टू परफॉर्म बट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज़ नॉट सो ईजी. सिंपल परफॉर्मेंस है, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट इजीली यूज़ कर सकते, लेकिन रिजल्ट हमको इजीली नहीं मिलता है. सो this is about non-destructive testing. Then importance: the strength can be tested without physical breaking of concrete, hence it is safe. तो स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहता है क्योंकि हम किसी भी तरह का फिजिकल ब्रेकिंग स्ट्रक्चर का नहीं करते हैं. देन रिजल्ट्स आर सिंपल एंड इजी टू इंटरप्रिट. सिंपल होते हैं रिजल्ट और इजीली हम रिजल्ट को इंटरप्रिट कर सकते हैं. देन इट इज़ अप्लीकेबल इन एनी पोजिशन, एनी टाइप ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर्स. तो किसी भी तरह से चेक किया जा सकता है. देन इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ कॉन्क्रीट, हेंस बिकम इकोनॉमिकल अप टू सर्टन एक्सटेंट्स. देन स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी एवेल्युएटेड बाय दीज मेथड्स. देन लिमिटेशंस ऑफ एनडीटी: इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल एंड ट्रेनिंग. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, उनका परफॉर्मेंस तो इजीली हो जाता है, लेकिन उससे रिजल्ट निकालने के लिए स्किल और एक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है. देन कॉम्प्लेक्स शेप मेंबर्स रिजल्ट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट. मतलब कॉम्प्लेक्स शेप जो होते हैं, जैसे सर्कुलर शेप हो गया, आर्च शेप हो गया, तो इनके रिजल्ट इजीली एक्यूरेट आते नहीं हैं. देन करोजन डिटेरियोरेशन कैनॉट बी असेस्ड. तो करोजन और डिटेरियोरेशन ऑफ स्टील मेंबर्स कैनॉट बी असेस्ड. देन लोकल डिसकंटिन्यूटीज कैनॉट बी डिटेक्टेड. मतलब अगर कोई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के अलावा और कोई दूसरा होगा तो वो असेस नहीं किया जा सकता. तो दीज आर द लिमिटेशन. देन टेस्ट परफॉर्म फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट. कौन कौन से टेस्ट होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में?
पहला है एब्रेशन टेस्ट, फिर हार्डनेस टेस्ट, डायनामिक एंड वाइब्रेशन टेस्ट, रेडियो एक्टिव टेस्ट, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल टेस्ट, अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। देन हम रिबाउंड हैमर टेस्ट पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ रिबाउंड हैमर टेस्ट? तो यहाँ पर रिबाउंड हैमर इस तरह से होता है, ये आप देख रहे हैं। रिबाउंड हैमर एक कॉलम को का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज़ किया है, पिक्चर में दिख रहा है। तो रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड ऑफ कंक्रीट विच प्रोवाइड ए कन्वीनियंट एंड रैपिड इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो रिबाउंड हैमर से हम कन्वीनियंट और रैपिड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मिथ हैमर दैट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल मास दैट स्लाइड्स ऑन ए प्लंजर विद इन ए ट्यूबुलर हाउसिंग। When the plunger of rebound hammer is pressed against the surface of concrete, a spring control mass with a constant energy is made to hit the concrete surface to rebound back. The extent of a rebound, which is measure of surface hardness, is measured on a graduated scale. The measured value is designated as rebound number. The concrete with low strength and low stiffness will absorb more energy to yield in lower rebound value. तो रिबाउंड हैमर का स्केच आप देख सकते हैं। ये जो नीचे का पोर्शन है ये रिबाउंड हैमर है, प्लंजर जो दिख रहा है, और ये पोर्शन जो है ये कंक्रीट है। तो ये रिबाउंड हैमर को कंक्रीट से पूरा असेंबली को कंक्रीट से टच किया है। तो क्या किया जाता है, इसको पीछे से इसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये प्रेस होगा और फिर बाहर वापस रिबाउंड करेगा। जैसे हमारा पेन होता है, जो बैक साइड से प्रेस करते तो सामने से पेन का जो टिप पॉइंट है वो बाहर आता है। तो इसी हिसाब से है ये। तो इसको पीछे से प्रेस करेंगे तो ये कितना स्ट्रेंथ ले रहा है, प्रेस करने के बाद वो वापस अपनी जगह पे आता है और रिकॉर्ड करता है कितना स्ट्रेंथ लगा। वो जो यहाँ पर है ट्यूबुलर हाउसिंग मास, ये मास क्या होगा, जब हम प्रेस करेंगे तो ये मास आगे जाएगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा और रिकॉर्ड करेगा कि कितना स्ट्रेंथ लगा। तो ये रिबाउंड हैमर जो है वो इससे इजीली हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। वेरी कन्वीनियंट मेथड। देन ऑब्जेक्ट ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट। So, object of rebound hammer test is to determine the compressive strength of the concrete by relating the rebound index and the compressive strength. To assess the uniformity of the concrete, then to assess the quality of concrete based on standard specification, then to relate one concrete element with other in terms of quality. तो दो concrete element को compare किया जा सकता है quality के point of view से। सो सपोज एक का स्ट्रेंथ अलग आया, दूसरे का अलग आया, एक ही साथ बनाया, तो क्वालिटी दोनों की चेक की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ रिबाउंड नंबर और रिबाउंड हैमर टेस्ट। देन प्रिंसिपल ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रिबाउंड ऑफ एन इलास्टिक मास डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द कॉन्क्रीट सरफेस अगेंस्ट विच द मास स्ट्राइक्स। तो कॉन्क्रीट का जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो रिबाउंड हैमर में जो मास है वो स्ट्राइक करता है और वापस अपनी पोजीशन पे आता है। तो इलास्टिक मास डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द कंक्रीट सरफेस का हार्डनेस कितना है उससे हमको रिबाउंड हैमर उस पर बेस्ड है। रिबाउंड हैमर इट इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल कि सरफेस जो है हार्डनेस ऑफ द कंक्रीट सरफेस, इलास्टिक मास जो है हार्डनेस ऑफ द इलास्टिक सरफेस पे डिपेंड करता है। देन व्हेन द प्लंजर ऑफ रिबाउंड हैमर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द कंक्रीट सरफेस, the spring controlled mass in the hammer rebounds. The amount of rebound of mass depends on the hardness of the concrete surface. तो जितना अमाउंट ऑफ मास रिबाउंड बैक होगा उतना सरफेस हार्ड है, इसका मतलब। Thus the hardness of concrete and rebound hammer reading can be correlated with compressive strength of concrete. The rebound value is the read off along a graduated scale and is designated as their bound number or rebound index. So compressive strength can be read directly from the graph provided on the body of the hammer. तो उससे पता चल जाएगा रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो देखो जैसे प्रेस किया, देखिए आप सेकंड इसमें क्या है, वो
प्लंजर के पोर्शन पे ये मास स्प्रिंग जो है ये प्लंजर के पोर्शन तक आ गया, फिर वो धीरे धीरे वापस जा रहा है। हैमर जो है वो रिबाउंड हो जाता है बाद में। देखो मास पूरा आगे तक आया, प्रेस किया अगर पीछे से तो, और फिर बाद में वो रिबाउंड होना शुरू हो गया। रिबाउंड हो जाएगा मास और फिर बाद में हैमर जो है वो रिबाउंड हो जाता है बैक टू। तो ये पिक्चर से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। हैमर रिलीज हो गया और हैमर रिबाउंड हो गया। देन प्रोसीजर फॉर रिबाउंड हैमर टेस्ट। So procedure for rebound hammer test on concrete structure start with calibration of the rebound hammer. Then for this the rebound hammer is tested against the test made of steel. After the rebound hammer is tested for accuracy on the test, the rebound hammer is held at right angle to the surface of the concrete structure for taking readings. The test thus can be conducted horizontally on vertical surface and vertically upwards or downwards. तो जो वर्टिकली अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल किसी भी तरह का टेस्ट हम रिबाउंड हैमर की हेल्प से कर सकते हैं, कैसा भी बीम। सो रिबाउंड, इफ द रिबाउंड हैमर इज हेल्ड एट इंटरमीडिएट एंगल द रिबाउंड नंबर विल बी डिफरेंट फॉर सेम कॉन्क्रीट। तो रिबाउंड हैमर जो है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इस तरह की रीडिंग लेता है। अगर हम उसको इंक्लाइन में रीडिंग लेंगे तो वो इंक्लाइन में प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो में ही रीडिंग वो प्रॉपर देगा। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रिबाउंड हैमर टेस्ट। द कॉन्क्रीट सरफेस शुड बी स्मूथ, क्लीन एंड ड्राई। रिबाउंड हैमर टेस्ट से अगर टेस्ट करना है तो कॉन्क्रीट स्मूथ, क्लीन और ड्राई होना चाहिए। लूज पार्टिकल्स शुड बी रब्ड ऑफ फ्रॉम द कॉन्क्रीट, मतलब लूज पार्टिकल्स को रब्ड ऑफ करना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस पे ही ये टेस्टिंग हो सकती है, एग्जैक्ट रीडिंग देगा। देन इट शुड बी नॉट बी कंडक्टेड ऑन रफ सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन, लॉस ऑफ ग्राउंड, स्पैल्ड और टूल कॉन्क्रीट सरफेस। तो रफ सरफेस पे कभी भी ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिबाउंड हैमर और कॉन्क्रीट सरफेस शुड बी एटलीस्ट 20 mm अवे फ्रॉम एज और शेप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जो पॉइंट होता है हैमर का या प्लंजर का जहां हम लगा रहे, वो डिसकंटिन्यूटी जो है उसके 20 mm अवे होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट गिव द प्रॉपर रीडिंग। देन 6 रीडिंग ऑफ रिबाउंड नंबर इज टेकन एट ईच पॉइंट ऑफ टेस्टिंग एंड एन एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग इज टेकन एज रिबाउंड इंडेक्स। तो कोई भी स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है तो रिबाउंड हैमर से 6 रीडिंग ली जाती है और वो 6 रीडिंग का एवरेज निकाल के वो रिबाउंड इंडेक्स लिया जाता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रिबाउंड हैमर। सो यहाँ पर देखो ये पिक्चर में दिख रहा है कि हैमर अलग अलग पोजीशन से, हैमर हॉरिजॉन्टल अगर है तो ये ग्राफ प्लॉट किया है रिबाउंड नंबर वर्सेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। हैमर वर्टिकली, हैमर हॉरिजॉन्टल एंड हैमर वर्टिकली डाउन, हैमर वर्टिकली अप, हैमर हॉरिजॉन्टल। तो एक है वेट कॉन्क्रीट, एक है ड्राई कॉन्क्रीट, तो दोनों का यहाँ रीडिंग दे रहा है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट। apparatus is easy to use, determines uniformity properties of the surface, the equipment used is inexpensive, then used for the rehabilitation of old monuments. Disadvantage क्या है? The result obtained is based on a local point. The test results are not directly related to the strength and deformation property of the surface. The probe and the spring arrangement will require regular cleaning and maintenance. Then flaws cannot be detected with accuracy. Then summary. What is non-destructive testing? We have seen today methods of non-destructive testing, importance of non-destructive testing, what is rebound hammer test. Then assignment. Explain rebound hammer test in detail. State the limitations of rebound hammer test. Name different entity. Explain any one in detail. Write advantages and disadvantages of rebound hammer test. So this was about today's lecture. Thank you.